Greetings in the Lord of Jesus Christ. Today, Reverend Rodney Abraham, who is minister in Anglican Church, a Syrian and Arabic service, and he's my favorite lecturer also. And I think when you watch this video and hear the word of God, sure you will bless. Now, let's start. Good evening, Reverend Javid. Very good evening, sir. I'm very happy, delighted to be with you in this ministry, and we pray that God will use spreading the word of God to many people. They hear the gospel. मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं इस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर आज हम खुदावंद का कलाम पेश करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर इससे बरकत पाएं. Amen. Today we're going to talk about Jesus Christ as a person. आज हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे बतौर इंसान. Many people are asking and curious to know who is Jesus Christ. बहुत से लोग इसके बारे में पूछते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है. Is he a man? अगर वो एक इंसान है, Yes, he is. यस वो इंसान है. Is he the prophet of God? अगर वो खुदा का नबी है, Yes, he is as well. तो यकीनन वो है. In John chapter 6, when Jesus did the miracle and fed 5,000 people, यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब उसमें खुदा यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में लिखा हुआ है. they said he is truly the prophet who was to come to the world. वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक सच्चा नबी है जो दुनिया में आया. Is he the Messiah? क्या वो मसीहा है? Yes, he is as well. यस वो मसीहा हैं. John chapter 4, when he spoke to the Samaritan lady, यूहन्ना की इंजील में उसके 4 बाब में एक सामरी औरत के बारे में, she believed in him and went and spoke to the people of Samaritan, her city. तो जब उसने खुदा यीशु मसीह के बारे में सुना तो उन्होंने सामरी लोगों को जाके उसके बारे में बताया. And Jesus went to the Samaritan in that city. और खुदा यीशु मसीह भी सामरियों के पास उस शहर में गए. And they believed in him as well. उन्होंने भी खुदा यीशु मसीह पर वो ईमान लाए. And they said he is truly the Messiah who is to come to the world. और उन्होंने कहा कि यही वो सच्चा मसीहा है जो दुनिया में आया. So what does it mean that Jesus is the Messiah? यही लोगों का ईमान था कि ये मसीहा है. Simply by the Old Testament teachings, the Messiah was expected to come. अगर हम नए अहदनामे में देखें तो पूरे पुराने अहदनामे में ये बताया गया कि मसीहा आने वाला है और नए अहदनामे में मसीहा आया. And he was supposed to be a divine person. और वो एक मुकद्दस हस्ती है. In fact, more than muqaddas, but he is a God. Divine. वो खुदा है. Exactly. बिल्कुल. He knows a little bit Urdu as well. So Jesus Christ is a man. यीशु मसीह एक इंसान है. He is also a God at the same time. वो इसके साथ खुदा भी हैं. He is a prophet of God. वो खुदा के नबी हैं. Where Moses prophesied about that prophet in Deuteronomy 18:15. मूसा नबी ने भी इस्तिस्ना की किताब उसके 17-18 बाब में ये पेशन गोई की. So he is a very unique person. वो एक बहुत ही यूनिक किस्म के इंसान है. He is also the king. वो एक बादशाह भी हैं. Because Matthew is talking about Jesus as a king. क्योंकि मत्ती रसूल ने खुदा यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर बयान किया. And at the same time, he is the servant of Jehovah.
और इसके साथ साथ वो यहोवा का खादम भी है। And that's what Mark is speaking about, the personality of Jesus Christ. और मरकस ने खुदा यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में भी बताया। He is also the head of the priests, the head of the priests, the chief priest, the Lord Jesus, Ra'is Kahana. वो खुदा यीशु मसीह के अजीम काहन हैं Kahan hai. And he is as well God. और इसके साथ साथ वो खुदा भी हैं। That's why this personality required to have more than one witness. इसके बारे में बहुत इससे ज्यादा इस बात के गवाह हैं। That's why we have 4 apostles speaking about the personality of Jesus Christ. 4 रसूल खुदा यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में बताते हैं। You know, when you need to picture a subject, you make it in 3D. When you want to show a house, for example, you will show it in 3D, 3 dimension, called 3D. Yeah. तो इसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें 3D के बारे में पता चलता है। But this person, Jesus Christ, is so unique, needed more than 3D, he needed 4D. तो जब हम खुदा यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इससे भी ज्यादा खूबियां उसमें मिलती हैं। That's why we have 4 apostles speaking for the gospel of Jesus Christ. इसके बारे में 4 रसूलों ने 4 अनाजील में इसके बारे में लिखा है। It is one Injil, अंजील एक है, but 4 witnesses speaking about the same one Injil. लेकिन अंजील एक है, लेकिन 4 इसके बारे में एक ही वक्त में बताते हैं। Each one of them shed the light on the personality of Jesus Christ from one dimension. और इसके साथ सब एक ही रोशनी के बारे में, एक डिमेंशन के बारे में बताते हैं। That's why we have Matthew, Mark, Luke, John, 4 gospel, but it's one gospel. जब हम पढ़ते हैं तो मत्ती, मरकस, लूका और अंजील हम समझते कि 4 अनाजील हैं, लेकिन अंजील एक है। Yeah, for we see that's why Matthew focus on the personality of Jesus Christ being the king. मरकस रसूल खुदा यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में वो एक बादशाह के तौर पे बयान करते हैं। Mark focus on the personality of Jesus Christ being the servant. मार्क Yes. मरकस खुदा यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि वो एक खादम है। Luke focus on Jesus Christ being the perfect person. और लूका खुदा यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि वो एक मुकम्मल इंसान है। And John focus on the personality of Jesus Christ being the divine God. और यूहन्ना रसूल खुदा यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि वो एक खुदा है। So we Christian, we have one Injil. और बतौर मसीही हमारे पास एक ही अंजील है। But 4 persons speaking about the same person at the same time. लेकिन 4 अशखास एक ही पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं और वो है खुदा यीशु मसीह। It's very important that people understand that we have one gospel. और ये बहुत जरूरी है कि हम सब सुनने वाले, पढ़ने वाले, बल्कि तमाम मसीही इस बात को समझें कि हमारे पास अंजील एक है। And the whole gospel, in fact, not only the New Testament, but the Old Testament is focused and centralized on one person. हम सारी अंजील को पढ़ लें तो हमें आखिर में मिलेगा ये कि इसका सेंट्रल जो है वो खुदा यीशु मसीह है और एक अंजील है। Yes, and that person is Jesus Christ. और वो शख्सियत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। Because he is the savior of the world. क्योंकि वो ही एक पूरी दुनिया के लिए निजात है।
John in chapter 3 verse 16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whoever believe in him shall not perish but rather have eternal life." यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. This episode is the start. It's like an introduction about Jesus Christ. ये हमारा पहला एपिसोड है और ये खुदा यीशु मसीह के बारे में एक तारफी एपिसोड है. But every week, by God's grace, we will focus about the work of Jesus Christ. और हम इसको आगे लेके चलेंगे और इस पे फोकस हम करेंगे खुदा यीशु मसीह के काम के बारे में, मतलब कि उनके मोजज़ात के बारे में. We will focus on the signs and the miracles that Jesus Christ has done. और हम खुदा यीशु मसीह के बारे में बताएंगे जो भी मोजज़ात उन्होंने किए. John chapter 20 verse 30 says, John chapter 20 verse 30 says, यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, "And many other signs Jesus Christ has done before his disciples." खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारे मोजज़ात अपने रसूलों से पहले भी किए, that you who will listen to these things will believe in him. और जब आप उसके बारे में सुने तो आप उस पर यकीन करें. And in John chapter 21 last verse says, John chapter 21 last verse, और यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब उसकी आखिरी आयत में लिखा है, says that Jesus Christ has done a lot of works and miracles. खुदा यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा काम और बहुत सारे मोजज़ात किए हैं. John says, "I suppose that the whole world does not contain the whole books if every miracle is written." यूहन्ना रसूल इसके बारे में बताते हैं कि अगर वो सारे मोजज़ात जो खुदा यीशु मसीह ने किए वो लिखे जाते तो इतनी बड़ी किताब बन जाती कि वो दुनिया में उसके लिए रखने की जगह ना होती. But for our benefit, God has put in the New Testament 35 miracles that Jesus has carried on during his ministry. लेकिन जब हम अनाजील को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि 35 के लगभग खुदा यीशु मसीह ने मोजज़ात किए और वो दर्ज हैं अनाजील में. और मैं समझता हूँ कि जिसकी हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है. Yeah. And these miracles, as I mentioned, they were 35 because he wants us to learn lessons about him being the Messiah. ये मोजज़ात इसलिए लिखे गए ताकि हम सीख सकें कि यीशु ही मसीह है. Yes. Now we will go as we move on. Every week we will have one of the miracles. Today is only an introduction. But as a brief, I can say the 35 miracles Jesus done. आज चूंकि हमारा एक तारफी एपिसोड है तो हम जो आगे चलेंगे तो फिर हम खुदावंद के यीशु के मोजज़ात को भी एक-एक करके बयान करते जाएंगे. And they are classified nearly in 7 groups, the 35 miracles. और ये जो 35 मोजज़ात हैं ये 7 तरीकों से क्लासिफाई देने किया गया है. The first group is healing diseases and sicknesses. पहला जो है वो खुदा यीशु मसीह ने शिफा दी, For the body healing, yeah, for the body and from sickness and disease. बीमारियों से शिफा दी और यानी हर तरह की बीमारियों से शिफा दी. There is about 12 of these miracles. और इसके बारे में 12 मोजज़ात का जिक्र मिलता है. The second group is the miracle of casting demons out of people. और दूसरे ग्रुप में हम आपको बताएंगे कि खुदा यीशु मसीह ने बदरूहों को निकाला. And there is 7 of these. और ये 7 हैं. The third group are miracles of opening blind eyes. और तीसरे ग्रुप में हम जिक्र करेंगे खुदा यीशु मसीह ने अंधों
को आंखें दी, and there is 4 of these. और ये 4 हैं. And the 4th group is the miracles of raising the dead. और चौथे ग्रुप में हम जिक्र करेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिंदा किया. And there is 3 cases that Jesus Christ has done. It's mentioned in the Bible. और वो 3 हैं जिनका जिक्र अंजील मुकद्दस में हमें मिलता है. And there are miracles related to the sea that Christ has done in the sea. Sea, water, sea. Yeah. That he walked on this water, that he stopped the wind, all these miracles. Yeah. और ये 3 मौजूदात समंदर में जो ना से मुतल्लिका हैं कि खुदा यीशु मसीह पानी पे भी चले, उन्होंने तूफान को भी डांटा. And there is 5 of them. और ये 5 हैं. The 6th group, miracles made to satisfy the need of people. और सातवें ग्रुप में हम जिक्र करेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने जरूरतमंदों की जरूरतों को भी पूरा किया. Like feeding the people with the bread and little fish. जिस तरह कुछ रोटियों और कुछ मछलियों से खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को, मतलब कि हजारों के साथ लोगों को खाना खिलाया. And there is 3 miracles in that. और ये 3 मोजज़ात का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है. The last group, it is the most strange miracle that Christ done. और आखिरी ग्रुप में 8वां ग्रुप जो है ना, वो बहुत ही अजीब किस्म के मोजज़ात हैं जो खुदा यीशु मसीह ने किए. Which is only one, cursing the fig tree. और वो है कि खुदा यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पर लानत भी भेजी. So we can say that 35 miracles were mentioned in the 4 gospels that Jesus Christ has done. और 35 मोजज़ात का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में यानी 4 अनाजील में हमें मिलता है. Yes. Matthew records 20 miracles. और मत्ती की इंजील में मत्ती रसूल ने 20 out of the 35. 20 मोजज़ात का जिक्र किया है 35 में से. Mark mentions 19 miracles out of the 35. और मरकस ने 19 मोजज़ों का जिक्र किया है 35 में से. Luke mentions 20 miracles as well, like Matthew. और लूका ने 20 मोजज़ात का 35 में से जिक्र किया है. John mentioned 8 miracles of the 35. और यूहन्ना रसूल ने 35 में से 8 का जिक्र किया है. So obviously there are some common miracles that have been mentioned by more than one scholar or apostle. ये मोजज़ात एक ही हैं जिन्होंने सारे रसूलों ने उन 35 मोजज़ात का ही जिक्र किया Yeah, है. because if Matthew write 20 and Mark write 19 and Luke write 20 and John write 8, that's more than 35 if you add them together, if everyone writes a miracle by his own, right? जब हम इन सारे मोजज़ात को गिने कि मत्ती रसूल ने 20 का जिक्र किया है, मरकस रसूल ने 19 का जिक्र किया है, और लूका ने 20 का किया है, यूहन्ना रसूल ने 8 का जिक्र किया है. तो ये more than 35. ये 35 से ज्यादा बन जाते हैं. But it is only 35 because there are some miracle mentioned, repeated in the Gospels. अगर इन सब की हम गिनती करें, इनको काउंट करें तो बनते 35 हैं, लेकिन कई मोजज़ात बार बार रिपीट किए गए हैं, यानी उनका जिक्र ज्यादा दफा किया गया है. Yeah. Today it's just an introduction of the gospel that we are giving to the people who are listening. ये आज एक बाइबल मुकद्दस का एक तारफी एपिसोड था जो आज हमने आपके सामने पेश किया. One more thing I need to say about the
first three Gospels, Matthew, Mark, Luke, और आज मैं आपको बताऊंगा पहली 3 अनाजील मत्ती, मरकस और लूका। in theology they are called synoptic Gospels, which are parallel Gospels, very similar to each other. इन 3 अनाजील में ज्यादातर तमसीलों के साथ खुदा यीशु मसीह ने बताया है। John, he mentions 8 miracles. There is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 of them only mentioned in John out of the 8 miracles. So he only mentioned about them. 8 में से 6 का जिक्र जो दर्ज हैं उनमें से 6 का जिक्र हमें मिलता है। For example, the first miracle Jesus did, मिसाल के तौर पर जो खुदा यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा किया, we're gonna see it next week. वो हम अगले हफ्ते आपको बताएंगे। That is turning the water into wine in the wedding. जो खुदा यीशु मसीह ने एक शादी के मौका पर पानी को मैह में तब्दील कर दिया था। So it's only mentioned in John. That's why I'm saying. ये सिर्फ यूहन्ना की इंजील में बयान किया गया है। Because John is speaking about Jesus Christ as divine person. क्योंकि यूहन्ना रसूल खुदा यीशु मसीह को एक खुदा कहकर उन्होंने बयान किया। That's why the introduction of John Gospel, यही वजह है कि यूहन्ना की इंजील का मकसद says in the beginning was the Word. ये कहता है कि इब्तिदा में कलाम था And the Word was with God. और कलाम खुदा के साथ था। Not only that, but the Word was God Himself. ना सिर्फ ये कि बल्कि कलाम खुदा के साथ था। And the Word, in verse 14, the Word became flesh. और 14 में पहला बाब उसकी 14 में लिखा है कि कलाम फिजिकली यानी जिस्मानी शक्ल में है। So, if God is the Word, अगर खुदा कलाम है and the Word is human, और कलाम इंसान है, so God became human. तो फिर खुदा इंसान बन गया। It's like the equation x equal y, y equal z, then x equals z. एक्चुअली पास्टर साहब की जो है ना वो केमिस्ट्री फिजिक्स जो है ना ज्यादा बेहतर है तो Okay, I just mentioned an equation. So, by God's grace, next week we will start with the first miracle that Jesus done out of the 35, which is turning the water into wine in the wedding in Cana, Galilee. खुदा यीशु मसीह के फजल से हम अगले एपिसोड में उस मौजज़े के बारे में आपको बताएंगे जो खुदा यीशु मसीह ने शादी के मौका पर पानी को मैह में तब्दील कर दिया। Thank you very much for today. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब देखने वालों का। Please pray, Pastor, for the people. सो हम आखिर में दुआ करेंगे। कादर मुतलिक आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तूने आज हमारी जिंदगियों में ये बड़ा कीमती वक्त दिया ताकि हम तेरे बारे में लोगों को बता सकें, तेरी अंजील के बारे में लोगों को बता सकें, ऐ खुदावंद तेरी शख्सियत के बारे में बता सकें, तेरे बेटे के बारे में बता सकें, तेरे उन मोजज़ात के बारे में बता सकें। ऐ बाप, मैं उन सब सुनने वालों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद जो तेरे कलाम को सुने। खुदावंद तो उनको बड़ी बरकतों से माला माल करना, उनके घरानों को अपनी बरकतों से माला माल करना, और इसी तरह तेरे लोग तेरी अंजील को सुनकर तुझसे बरकत पाएं और अपने ईमान में जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम रहें। मेरी इस दुआ को सुन और अपने हुजूर कबूल फरमा। ये दुआ मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। Amen. बहुत शुक्रिया जी, खुदा आप सबको बरकत दे।